we see a shift in careers from engineering and medicine towards non-traditional pathways. We see a lot of people wanting to become fashion designers like Manish Malhotra, Sabyasachi, or even for say K-pop artists and whatnot. Today, we have expert around one such category called design and architecture. There will be answers to many such weird yet very important questions like, my child is good in art, what should he do? My child loves gaming, is that a career? Is it even possible in India? While some of you want to get into those prestigious IITs, today we will be throwing light upon the alternative career options that can land you to those IITs without maths. Impossible, right? So let's start the journey of impossible to possible with Konark Bhatia. Welcome, sir. Thank you, Anshul. So you started Creative Edge 6 years ago down the line. Yeah. What is that one thing that Creative Edge provides in preparation to its students? Can I say more? Sure, sir. Why not? So, यार मुझे ऐसा लगता है, and also यार, can I speak in both the languages? Sure thing, मतलब sir. मुझे ऐसा Absolutely. लगता है कि बेस्ट एक्सप्रेशंस हिंदी में आते हैं और मुझसे इससे ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है. Sure तो यार ये वन थिंग वाली बात जो है ना, बिकॉज ये वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट शायद ये होगी कि वी आर दी फर्स्ट वन इन इंडिया टू स्टार्ट ऑनलाइन क्रिएटिव का एजुकेशन, वेर इन हमने टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का एक बहुत अच्छा ब्लेंड लाया. कैमरे के एंगल्स को डिफरेंटली सेट किया जिससे बच्चे को कैसे डिज़ाइन पढ़ना है ऑनलाइन, ये वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया. इसके अलावा एक कोचिंग क्लास में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप देखते हो, एंड जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है वो कौन पढ़ाता है, कैसा पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है. तो हमने ये तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से सॉल्व किया. सो कौन पढ़ाता है, वी हैव इंडियाज़ बिगेस्ट फैकल्टी टीम. क्या पढ़ाते हैं, तो कोर्स क्यूरेटेड बाय एक्सपर्ट्स, बहुत अच्छा कोर्स पढ़ाते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या कंटेंट पढ़ाते हैं, वो जो कंटेंट बच्चों को भी डिलीवर होता है. अंशुल, यू वोंट बिलीव, हम उस पर डेली रिसर्च करते हैं. इट्स एवर अपडेटिंग कंटेंट, एंड आई थिंक हमारे लिए एज अ टीम ये बिगेस्ट चैलेंज भी है, बिकॉज हम बुक्स तो साल में एक बार ही रिन्यू कर पाते हैं, बट मटेरियल बच्चे को हर हफ्ते नया मिलता है. तो यस, ये तीनों चीज़ें, कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है और क्या पढ़ाता है, ये क्रिएटिव एज की बेस्ट है. Okay, sir. So, sir, design and architecture, these are the careers that we will be talking about, of course. But before that, what exactly is the career perspective of design and architecture that I want to know? And for all the parents who are watching us, let's break the noise of all. So yes, Anshul, I mean, this is one of the most common questions that parents ask me when I take counseling. I do a lot of videos on YouTube, and I mean, this is the most common question which I hear, कि यार करियर है कि नहीं, पर्सपेक्टिव क्या है, क्या होता है. So as you know, I mean, we live in India. It is one of the fastest growing economy of the world, and there is so much of development around, and it is not only in the infrastructure or the political scenario or the financial scenario or X scenario, Y scenario. It is everywhere. Right. And there is a huge demand of skilled professionals, and that is what you become when you choose creative careers, and especially in design and architecture. And since you are skilled, there is a very specific demand. अब यार ये डिमांड हर जगह है. आज अगर आप देखते हो कि एक कार भी UI UX यूज़ कर रही है, एक टेलीविजन भी यूज़ कर रहा है, फैशन आप और हम जैसे लोग भी आजकल यूज़ करने लग गए. हम आजकल घर खरीदते हैं तो बिना इंटीरियर के घर के अंदर मूव इन नहीं करते हैं. एंड अगर हम देखते हैं तो हम प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत जानने लग गए. अब हमारी डिमांड है, यार मुझे तो ये कार्बन फ्रेम का ही चश्मा चाहिए, आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का वॉच स्ट्रैप चाहिए. आई मीन, दिस इज ऑल व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, एंड आई एम श्योर यू वुड अंडरस्टैंड इट बाय नाउ कि ये सब बिना डिज़ाइनर के आए नहीं हो सकता. एंड एज अवर प्राइम मिनिस्टर सेड अराउंड 5 years back that we want to make a country from where designers will be exported. And mind you, we are importing designers right now, but we want to export designers, and that is how the demand of this career is quite high in India. Absolutely. I think what you said just made absolutely sense, because I think design is a part of our everyday lives. Correct. Indeed. So I think that sums it up all. Okay. So my second question to you, sir, would be that a student who is not from science background, first of all, who is a non-maths person, Correct. you know, but as a parent, you know, every parent has some desires. So
if a parent wishes that, you know, my kid should be studying in one of the prestigious IITs of the nation, is it possible, sir? Absolutely. I mean, so I'm an engineer myself, but in my time, you know, IITs are considered to be only science specific colleges. But design में बहुत अच्छी possibilities हो गई हैं, wherein you can make it to IIT if even you are a humanities student, Okay. if even you are an art student, or if you are from commerce background, if you are, you know, mix and match of subjects, if you are obviously from PCM background, if even you are from PCB background, I mean bio background. So there is an exam known as UCET, Undergraduate Common Entrance Examination for Design at the undergrad level, and CEED, Common Entrance Examination for Design at the PG level. इसके थ्रू आप IIT पहुंच सकते हैं. There are 6 IITs in India which are offering Bachelor of Design degree, and premier most being IIT Mumbai. IIT Delhi is the another one, Roorkee is there, Guwahati is there, Hyderabad is there. Even IITDM Jabalpur, which is as equivalent to an IIT, are offering Bachelor of Design degree to all the students from any field. So yes, if you're not from science background, you can still make it to there. मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट भी करता हूँ आपके. एक डाउट और पेरेंट्स इसके अराउंड पूछते हैं कि सर मेरे बच्चे को ना इंटीरियर डिज़ाइन में इंटरेस्ट है या UI UX में इंटरेस्ट है, इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह लगता है, तो क्या इसके लिए साइंस ज़रूरी है? तो बस मैं आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यार डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है, एंड माइंड यू आई एम बहुत स्पेसिफिकली सोच के बोल रहा हूँ कि डिज़ाइन अकेली एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इट इज़ फील्ड न्यूट्रल, लाइक इट इज़ जैसे जनरल न्यूट्रल होता है वैसे ये फील्ड न्यूट्रल है. आप कोई भी फील्ड से आ रहे हो, यू कैन एक्चुअली परस्यू योर करियर इन डिज़ाइन through many colleges. I mean, there are a lot of colleges which are offering this. Okay, sir. So, you know, there has been a very common notion. जब हम डिज़ाइन के बारे में कुछ सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट आता है वो है इंटीरियर, ठीक है, वन बीइंग दैट एंड वन बीइंग फैशन डिज़ाइनर. करेक्ट. ठीक है. फॉर एनी लेमैन आई थिंक किसी के भी दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आता है. बट मुझे पता है, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, नाउ दैट आई हैव रिसर्च्ड अ बिट, आई नो देयर आर umpteen number of endless possibilities as a career in design. So I just want you to highlight, apart from fashion and interior, what are those? So यार बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगेन आपको एक इंसिडेंस याद दिलाता हूँ. मेरे पास एक पेरेंट बैठे थे, बोले सर बच्चा फैशन करना चाहता है, हमें भेजना नहीं है, इंटीरियर बहुत प्रेस्टीजियस उनको फील्ड नहीं लग रही थी, तो सर क्या और फील्ड्स ऑफ डिज़ाइन होते हैं? वेरी सिमिलर क्वेश्चन टू व्हाट यू आस्क्ड. सो मेरा भी नया करियर था, तो मैंने भी लिखना चालू किया. Actually, you won't believe I actually wrote down 23 different fields of design that day, and these were major. When I was trying to write minor job roles and all the fields of design, if I go deep into it, minute things, it goes beyond 100. So I'll highlight few for you. I mean, as rightly said, it is one of them is obviously fashion. Another is interior. Connected to interior is architecture. Architecture being a little technical in nature, so we may talk about it a little later. Third, which is most commonly heard, is product design. Now, another field of design which has come up since last 7-8 years is communication design, and communication is very vast. You have heard very common terms like graphic design. Absolutely. It is part of communication design. Communication design, graphic design के भी ऊपर एक superlative term आ जाती है, इसको बोलते हैं visual communication. Okay. So there is something known as visual communication designer. Okay. And obviously UI UX, user interface, user experience is one of the क्या बोलते हैं हॉट केक डिजाइन फील्ड है आज का. देन देयर इज VFX एंड एनिमेशन. नाउ ये कम्युनिकेशन डिजाइन इन 3 चीज़ों में रैप अप हो जाता है. उसके आगे जाते हैं, बहुत एज ओल्ड चल रहा है, फैशन से कनेक्टेड है टेक्सटाइल डिज़ाइन. फैशन से कनेक्टेड एक और फील्ड है एक्सेसरीज डिज़ाइन. आजकल हम लोग देखते हैं कि प्रेशियस ज्वेलरी, नॉन प्रेशियस मेटल ज्वेलरी, टैटूज, बैग्स, बेल्ट्स, एक्सेसरीज कर रहे हैं आजकल सारे कपड़ों को. तो एक्सेसरीज डिज़ाइन बहुत बड़ा फील्ड ऑफ डिज़ाइन है. सो इस तरीके से अगर हम घुसते जाएंगे तो बहुत सारे फील्ड ऑफ डिज़ाइन निकलेंगे. मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ ऐसे फील्ड मेंशन नहीं कर रहा हूँ जैसे फर्नीचर डिज़ाइन. अब ये पार्ट ऑफ इंटीरियर है, पर देखा जाए तो अपने आप में एक फील्ड ऑफ डिज़ाइन है. तो यस, देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स ऑफ डिज़ाइन, बट मेजरली हम बोल सकते हैं 7-8 तो मेजर इसके डिविजन्स हैं. मेजर डिविजन्स. ओके, सो दैट नाउ पेरेंट्स नो देयर आर so many choices that one can make from their desired choice of stream wherever they want to. Sir, my next question to you would be,
So suppose I am a parent. Do I need to enroll my child into a degree program while he is pursuing design and architecture as a career? So very rightly asked question, Anshul. क्या होता है, आज से अगर मैं 10 साल पहले का सिनेरियो बताऊँ ना आपको, तो ये आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन था, आज की डेट में नहीं है. क्यों वैलिड था? क्योंकि ये एक पर्सपेक्टिव हुआ करता था पेरेंट्स का, क्योंकि हमारे पास जो एजुकेशन अवेलेबल थी वो एक वोकेशनल एजुकेशन के रूप में डिज़ाइन एजुकेशन मिलता था. बट टुडे इट इज़ अ मेन स्ट्रीम करियर ऑप्शन and degrees are properly recognized by UGC, which is University Grant Commission. So I'll tell you, there are 3 major colleges, stream of colleges जहाँ से आप design कर सकते हैं. One of them is obviously IIT, as we spoke. Yes. UCT is the examination that you give. Then you have got National Institute of Design. इंडिया में 5 जगहों पे जहाँ से आप undergraduate कर सकते हैं. And 3 places you can do your PG, NID. So 5 different places. And then you have got NIFT. इंडिया में 18 places पे NIFT colleges हैं. And all these colleges are offering you, I mean NID, NIFT and UCEED के through जो IIT मिलता है, they are offering you Bachelor of Design degree. It's a 4-year degree program, proper degree program. I just want to clear the air for the parents here that you don't need to enroll your child into any other degree program. This is as equivalent to any other BTech, Bachelor of Engineering, or maybe MBBS kind of a degree. It's a proper degree program. You can always pursue your PG education post this. Even if you wish to go into a government job, if you wish to pursue your doctorate post this is as valid as any other degree program. Absolutely. Great, sir. Thank you so much for this, because that was a very important question in my say, because everybody, like every parent thinks that, you know, you should always have a backup, so that why don't you do some other degree or kar lo. But I think this your answer justifies I think everything. So my next question to you would be, we all know that every career has some specific traits of people that they want to dive right into. You know, there are basic needs, like aspiring lawyers has to have that keen interest in reading, or suppose you know, if a singer, he should have a melodious voice. Of course it can be trained later, but what do you think, sir? Like, what are those 3 non-negotiable traits for a design aspirant that should be there absolutely, which are unavoidable? And yeah, that way. So for a creative person who want to pursue their creative career degree or a design degree, one non-negotiable trait is being creative. अच्छा, यहाँ being creative का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उसका sketching skills बहुत अच्छा होना चाहिए. So हम लोग बहुत बार बच्चों को समझाते हैं कि यार आपको आर्टिस्ट नहीं बनना है, आपको डिज़ाइनर बनना है, तो आपको ना स्केचिंग के थ्रू कम्युनिकेशन करते आना चाहिए, कम्युनिकेबल स्केच होना चाहिए आपका, ठीक है. तो एक बीइंग क्रिएटिव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मैं एक और चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि आपको इनोवेटिव होना ज़रूरी है. इनोवेटिव इसलिए होना ज़रूरी है, और ये ट्रेट नॉन नेगोशिएबल है, बिकॉज यार एक डिज़ाइनर से हमारा एक्सपेक्टेशन ना कुछ नया की होती है, हमेशा कुछ नया चाहिए यार. मतलब हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे यार मेरे को शर्मा जी जैसा सेम घर बना देना. आप हमेशा बोलोगे यार मुझे शर्मा जी जितना सुंदर घर तो चाहिए, पर कुछ अलग चाहिए. सो एक बीइंग इनोवेटिव इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेट अ डिजाइनर शुड हैव, दैट इज बीइंग रेजिलिएंट. व्हाई बीइंग रेजिलिएंट? बिकॉज क्या होता है, बाउंस बैक करने की जो कैपेसिटी होती है ना, क्योंकि राइट फ्रॉम योर एजुकेशन टू योर फाइनल व्हेन यू प्रेजेंट इट टू योर क्लाइंट, एंड देयर इज अ ह्यूज रिजेक्शन दैट यू विल फेस. सो डिज़ाइन कॉलेज में बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, वहाँ पे एक बहुत पॉपुलर टर्म है, उसको बोलते हैं रीडू. आप जब भी कोई असाइनमेंट लेके जाओगे आपका प्रोफेसर बोलेगा रीडू. क्यों? क्योंकि यार वो आज की दुनिया जो इतनी गूगल से इंस्पायर्ड है, वी आर इन अ वर्ल्ड ऑफ, यू नो, I'm sorry to use this word, we are in a world of copycats. But यहाँ हमारी डिजाइनर से एक्सपेक्टेशन है being innovative. So there is a lot of redo. So redo से करने से resilient होना बहुत जरूरी है, and you need to bounce back. So being creative, being innovative and being resilient are 3 things. And यार इसके beyond भी एक ऐसा trait है, मुझे नहीं लगता कि ये होता सब में ही है, पर इसको होन करना, nurture करना डिजाइनर के लिए बहुत जरूरी है. That is, he or she should be a dreamer. उसे ख्वाब देखते आने चाहिए, क्योंकि ये ख्वाबों की दुनिया है. Absolutely. तो डिजाइन एक्चुअली क्या होता है, जो मैंने ख्वाब देखा अगर वो आप प्रोड्यूस कर दो तो आप डिजाइनर. आई थिंक इस केस में डे ड्रीमिंग मेक्स सेंस. यस, एब्सोल्युटली. ओके, cool, sir. So now that we have spoken about
many design and very much into the career, design as a career. Now I would like to ask you that how expensive are these careers, because sir, it's not a very like ये BCom नहीं है कि हमने किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से कर लिया या हमने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से कर लिया. These are professional degrees. So how expensive are these careers? My first question. And what is the fee structure difference between a government college and a private college? Sir, like any other professional college which gives you skills. So there are two important words, professional college and skills. Being professional and being a skilled professional. सर थोड़ा तो एक्सपेंसिव है. आई नॉट से कि यार ये बहुत इकोनॉमिकल है. आपने नथिंग टू डीमीन BSc BCom और BA BBA, बट यार ये लाइक एनी अदर प्रीमियर कॉलेज, दीज कॉलेजेस आर एक्सपेंसिव. इनफैक्ट यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज भी एक्सपेंसिव है, एक्सेप्ट IIT. सो IIT इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड. सो मेरे कुछ स्टूडेंट्स IIT में बोलते हैं सर इसको इंडिया में नहीं है IIT. सो हम IIT पवई में जरूर पढ़ते हैं, पर ये IIT पवई एक अलग देश है, तो उस देश में फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है. पर हाँ, अगर आप NID की बात करेंगे तो अराउंड 3 lakhs पर एनम लगता है एज अ फीस. NIFT में बात करेंगे तो 3.25 लाख पर एनम से लेकर अराउंड 4 लाख पर एनम तक की फीस रहती है. किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करूंगा तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इंडिया में अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है फ्रॉम 2 लाख रुपीज़ अ ईयर टू मे बी 10-12 लाख रुपीज़ अ ईयर तक. तो एक्सपेंसिव एजुकेशन है, बट ये आपको ना स्किल्ड बनाती है. यहाँ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अंशुल समझने की. यहाँ पे 90% चांसेस ये हैं कि आपको PG नहीं करना पड़ेगा. So, अगर आप UG में देखते हैं तो एक 18 साल का बच्चा एंटर होता है, 22 साल का बच्चा निकलता है 4 साल की डिग्री करके. थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट व्हाट 22 ईयर्स की एज में एक स्किल्ड प्रोफेशनल होता है और एम्प्लॉयबल होता है. तो उसकी लाइफ की अर्निंग जर्नी थोड़ी जल्दी चालू हो जाती है. तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है एज अ पेरेंट ऑल्सो. आई ऑलवेज थिंक कि आई शुड नॉट लुक एट एक्सपेंस ऑफ एजुकेशन एज इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले फंडे में नहीं देखना चाहिए. एजुकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट. एंड यस, इन वन सेंटेंस डिज़ाइन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. हाँ, एक मतलब अगर मैं बोलूँ 4 साल के लिए तो यू शुड हैव 20 lakhs के आसपास का फंड टू get it done. So this gives all the parents a fair idea about who's जिनके भी kids prepare कर रहे हैं design के. Okay sir. So my next question to you is that I think a lot of students might have watched these famous movies around fashion, like Sui Dhaga for instance. मेरी बहुत ही favorite movie है. Fashion, Priyanka Chopra starring fashion. In these movies or likewise movies, what we see is the glitter and the glamour that follows this industry. On the other case, जब हम रियलिटी में आते हैं तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. So how do you explain this to a parent, to a student? इसके अंदर यार अंशुल मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ. ये प्रोफेशन में जॉब रिज्यूम में दिखा के नहीं मिलती. गूगल करेंगे तो शायद आपको ये पता चलेगा कि यार जॉब्स है भी नहीं. आई हैवंट कम अक्रॉस अ डिजाइनर टिल डेट हु इज नॉट सक्सेसफुल. एंड सक्सेसफुल इज अ बिग वर्ड. Correct. It is not only about earning high. It is about being satisfied with what you are doing. People knowing you. So मैं आज तक किसी डिजाइनर से नहीं मिला जो सक्सेसफुल नहीं है. They are all successful. Why? I'll tell you a very small reason to it. मैं अभी पहले भी बताया था आपको कि यहाँ आप जस्ट एक प्रोफेशनल नहीं बन रहे हो, आप यहाँ स्किल्ड प्रोफेशनल बन रहे हो. तो यहाँ पे जो बच्चा जब पढ़ रहा होता है, अगर वो प्रॉपर स्किल्स गेन करता है तो स्किल गेन करने के बाद स्किल डिस्प्ले करना और स्किल को कम्युनिकेट करना, एज अ पर्सनालिटी अपने आप को प्रेजेंट करना, जब आप ये सब कर पाते हो तो मतलब आप जॉब मिलना इतना डिफिकल्ट नहीं है. सो मैं आपको एक बहुत रीसेंट इंसिडेंट्स बताता हूँ. मतलब मेरे से भी एक बच्चा मेरा मिलने आया करीब 6 साल पहले मेरे पास पहली बार आया था वो स्टूडेंट. पहले उससे मेरे साथ पढ़ा, फिर बोला मैं आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लेता हूँ. मैंने कहा भाई तू डिज़ाइनर है, डिज़ाइनर बन. आगे से थोड़ा सा टेक्निकल होता है,
आर्किटेक्चर के लिए PCM कंपलसरी होता है, थोड़ा इंजीनियरिंग से नियर अबाउट रहता है, क्रिएटिव बोल सकते हो, क्रिएटिव करियर है इंजीनियरिंग साइड का। नहीं माना, उससे पहले एक कॉलेज ज्वाइन किया, फिर मज़ा नहीं आया, फिर ड्रॉप आउट होके आ गया मेरे पास, फिर 1 साल मेरे साथ ड्रॉप लेके पढ़ाई करी, मस्ती मजाक करते हैं बच्चे, अच्छे से पढ़ा, एक डिसेंट प्राइवेट कॉलेज में पहुंचा। आई नॉट नेम द कॉलेज, इट्स अ वेरी फेमस प्राइवेट कॉलेज विच ही वेंट टू। मेरे साथ अभी हफ्ते भर में पहले मिलने आया था। सो आई सॉ हिज वन ऑफ हिज पिक्चर्स ऑन Instagram. He posted a picture with Sunita Kohli, Mrs. Sunita Kohli. So Mrs. Sunita Kohli, if you don't know, I mean for the audience who doesn't know, she's kind of ace interior designers of India. She's very famous for her furniture designs. And believe me, Anshul, I could not believe this guy making it to Sunita Kohli's firm. I mean, हम हमारे जब लेक्चर्स लेते हैं ना, तो उसमें जनरल नॉलेज में पढ़ाते हैं कि भाई ये सुनीता कोहली है, मतलब यू नो ये एस्पिरेशनल है। हाँ, एस्पिरेशनल है, मतलब वो विराट कोहली ऑफ इंडियन क्रिकेट है। तो मतलब वो बच्चा वहाँ तक मेकआउट कर गया। इंदौर में का बच्चा है, रहने वाला, सिंपल परिवार को बिलोंग करता है, वेरी नॉर्मल फैमिली को बिलोंग करता है। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू ब्रिंग इन, अगर आप टैलेंटेड हो ना, तो यहाँ पे टैलेंट डिस्प्ले करने का बहुत मौका है, एंड यू कैन मेक इट टू दैट प्लेस जहाँ आपका टैलेंट रिकग्नाइज हो। अब आपका क्वेश्चन, कितना डिफिकल्ट है अच्छी जॉब मिलना किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी डिग्री में बहुत मुश्किल है। लाइकवाइज डिजाइन में भी कंपटीशन स्ट्रांग है, बट हाँ, क्योंकि यहाँ ओपनिंग्स बहुत हैं और स्किल्स पे जॉब मिलती है, थोड़ा सा स्टार्टिंग सैलरी एट टाइम्स आपकी टाइट होती है, बट यू कैन मेक इट टू गुड प्लेसेस। सो यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी इंटर्नशिप कहाँ हुई है। सो मैं उससे ये पूछा था मेरे स्टूडेंट से कि भाई हाउ कैन यू मेक इट टू, यू नो, ऑफिस ऑफ सुनीता कोहली। ही सेड, सर मैंने इंटर्नशिप के लिए बहुत पापड़ बेले थे, तो मैंने इंटर्नशिप उनके यहाँ करी थी, तो मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया, तो मैं उनके पास पहुंच गया। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो मे बी पिछले क्वेश्चन से भी रिलेटेड है। आई एम श्योर आपके मन में उबाल आ रहा होगा ये वाला पूछने का कि सर प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, पैसा कैसे आता है, एज एनी नॉर्मल यू नो इंडियन, यू वुड आस्क मी सर ROI क्या है। आपने बोला यार 20 लाख लग जाते हैं, 25 लाख लग जाते हैं कॉलेज में, व्हाट इज द ROI। सो इंटरेस्टिंगली मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था अभी, ही इज इन IIT IDC मुंबई, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई का जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट है उसको IDC बोलते हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर। ही सेड सर जो है जॉब करना चाहता है, उसकी 42 lakhs का पैकेज एवरेज, 42 lakhs का पैकेज एवरेज बहुत आसानी से लग जाता है। इमेजिन a 21 and a half, 22 and a half, चलो लास्ट ले लिया अपन ने, year old boy or a girl earning 42 lakh rupees an annum is very normal. It goes to 72, 80, 90, वो जो IIT के नॉर्म्स हैं वो तो वहाँ जा ही रहा है। NID की बात करता हूँ, NID में 50 lakhs is a very common figure, 50 lakhs का जॉब लगना is a very common figure, but यहाँ इम्पॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ कौन जॉब करना चाहता है। जनरली लोग एंटरप्रेन्योर जर्नी पे बहुत निकलते हैं एंड दे अर्न रियली गुड देयर। सो यस, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो MBA वाला नहीं होता है यहाँ पे। शुरुआत में कुछ थोड़ा कम होता है, पर अचानक से बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। I mean, it's also not fair to, you know, rank top MBA schools from these design universities, because सबका अलग different interest है, talent है. Also, people, you know, doing management are having, you know, developments like they might not be so creative, but then here comes skill, who's, you know, generating so much of revenue and everything for you, right? So my next question is again on the very similar lines. I would like to ask that you know, the design colleges that you are talking about, that we are discussing here, are not worth it. ऐसा मैंने बहुत से मिडिल क्लास घरों में सुना है, जब मैं पेरेंट्स से या किसी का बच्चा जब करना चाहता है डिज़ाइन, तो मैं उनसे बात करता हूँ,
तो उनका जनरली यही नैरेटिव होता है कि यार वो वर्थ इट नहीं है, मतलब उसमें क्या है कि मैंने सुना है कि जो बताते हैं वो होता नहीं है और सब कुछ ट्रूथ नहीं है। तो देखो अंशुल, कुछ हद तक ये बात सही भी है पर बहुत हद तक गलत भी है। क्यों? क्योंकि इफ यू मेक इट टू द राइट कॉलेज देन यू गेट राइट एक्सपोजर। एक्सपोजर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे आपका फैकल्टी ही आपको बताएगा कि आज का लेटेस्ट ट्रेंड क्या है। अगर मैं आज एक इंटीरियर डिज़ाइनर की बात करूँ, अगर वो एक कलर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है तो आज से 20 साल पहले के, 10 साल पहले के, 3 साल पहले के, 5 साल पहले के कलर कॉम्बिनेशन अलग थे, आज के कॉम्बिनेशन अलग हैं। रूफ का स्टाइल, लाइट्स का स्टाइल, इन सब की बात करें तो ये आज से 10 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले सब समयों पे अलग अलग चले। तो अगर आपके पास अच्छा प्रोफेसर है, इन सब चीज़ों को सीखने के लिए एक राइट इंफ्रास्ट्रक्चर है, करिकुलम स्ट्रांग है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ज़रूर बोलूँगा कि इसमें इंटरनेशनल तड़का लगना भी ज़रूरी है। तो अगर कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशंस हैं उस कॉलेज के अंदर, देन यू आर इन अ राइट कॉलेज, देन इट इज़ एब्सोल्युटली वर्थ इट। बट देयर आर फ्यू कॉलेजेस यू विल फाइंड एवरीवेयर इन एवरी सिटी, यू नो, यू विल फाइंड सम लोकल कॉलेजेस इन योर। अब नया उनके पास करिकुलम है ना, उनके पास अच्छा प्रोफेसर है पढ़ाने के लिए, एंड ऑब्वियसली इन सभी के कारण एक्सपोजर बच्चे का बहुत लिमिटेड है, तो वो वर्थ इट नहीं है क्योंकि फीस तो वो भी सिमिलर चार्ज कर रहे हैं। एंड इवन एट नेशनल लेवल देयर आर फ्यू प्राइवेट कॉलेजेस जो बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ यार, वो वर्थ इट नहीं है। बट हाँ, बाकी जितने अगर आप इन सब पैरामीटर्स को ध्यान से देखोगे तो अगर उसके बाद भी अगर एक्सपेंसिव कॉलेज है, बच्चा वहाँ पे अच्छा आ रहा है, एक डिसेंट क्राउड है, दे आर गिविंग यू अ गुड एक्सपोजर, इट इज़ वर्थ इट। सी अंडरस्टैंड दिस, अगर यहाँ डिज़ाइनर जो पढ़ाएगा आपको वो क्योंकि लेटेस्ट चीज़ों से एक्सपोज रहेगा, सब चीज़ें रहेंगी, तो उस प्रोफेसर की भी सैलरी डिसेंट लेवल पे होगी। उसको अफोर्ड करने के लिए कॉलेज भी वैसा चाहिए। अब उसके पास यार जैसे एक जूकी करके कंपनी है, उसकी स्विंग मशीन्स आती है, पैटर्न मेकिंग मशीन्स बोलते हैं। अब स्विंग मशीन तो ये लोग बोलते नहीं, इसको पैटर्न मेकिंग मशीन बोलते हैं। तो जूकी की पैटर्न मशीन्स आती हैं, वेरी एक्सपेंसिव मशीन्स। एक फैशन डिज़ाइन कॉलेज में वो कंपलसरी है, एंड मुझे लगता है वो हर 2, 3, 5 बच्चे पे एक होनी ज़रूरी है। अब यार मेरे पास अगर 50 बच्चे हैं और मेरे पास सिर्फ 10 ही जूकी है तो कुछ गड़बड़ हो रही है। मेरे पास 50 बच्चे और 20 जूकी है तो सही है। अब ये इन्वेस्टमेंट करना कॉलेज के लिए भी उतना ही एक्सपेंसिव है, तो कॉलेज आपसे फी डिमांड करेगा। पर अगर उसने एक कर दिया तो देन इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट। ओके सर, सो क्योंकि अब हम पेरेंट्स के नैरेटिव की बात कर ही रहे हैं, तो मैंने बहुत सारी जगहों पे ये भी देखा है, जब हम निफ्ट, NID, इन सारे इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो अक्सर पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है यार वहाँ का माहौल, मतलब मेरा बच्चा बिगड़ गया तो यू नो वेरी कॉमन नोशन, आपने भी फेस किया ही होगा आई थिंक काउंसलिंग के टाइम। सो हमारा बच्चा कैसे इस एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाएगा, हो भी पाएगा या नहीं, इस क्वेरी को सर आप हाउ वुड यू वांट टू थ्रो लाइट ऑन दिस? यार इसके 2-3 पर्सपेक्टिव्स हैं। यार मैं डिज़ाइनर फील्ड से हूँ तो मैं जब पर्सपेक्टिव में ज़्यादा बात करता हूँ, एक बार शायद आपके लिए भी और सभी के लिए बता दूं पर्सपेक्टिव होता है क्या। जैसे हम हमारी आंखों से देखते हैं वो पर्सपेक्टिव होता है, जो हमारी आंखें देखती हैं वो पर्सपेक्टिव में ही देखती हैं, करेक्ट? सो यार ये कॉलेजेस होते हैं, दीज आर कॉलेजेस विच आर वेरी मॉडर्न इन नेचर। यू फाइंड लॉट ऑफ मॉडर्न etiquettes being followed in these colleges, and ये इसलिए भी होते हैं कि ये अपने ना एक्सप्रेशन, स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, इसलिए काफ़ी ओपन एनवायरनमेंट देखते हैं। अगर देखिए आपको समझना पड़ेगा, जब कुछ मुझे नया क्रिएट करना है तो मुझे उस बॉक्स से निकल के आउट ऑफ बॉक्स तभी जा पाऊंगा जब मैं बॉक्स से निकलूंगा। भाई एज ए डिजाइनर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या, इनोवेटिव चीज होनी चाहिए। इनोवेटिव को थोड़ा सा रिफाइन करेंगे टर्म को तो क्या आएगा, आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। यार बॉक्स से बाहर निकलोगे तो आउट ऑफ, और बॉक्स के बाहर की दुनिया हमेशा हमें थोड़ी डिफिकल्ट तो दिखेगी, चाहे वो कल्चरली हो, चाहे वो हमारे सामाजिक वैल्यूज के रूप में हो, किसी भी तरीके से हो। बट यार एज पेरेंट्स, मैं भी एक, आई एम अ फादर ऑफ अ डॉटर, सो आई एम अ फादर ऑफ अ टीनेज डॉटर, तो मैं आपको हमेशा ही बताऊंगा, देखिए हमें हमारी ना परवरिश पे भरोसा होना चाहिए। एंड प्लस आज का बच्चा बहुत इन्फॉर्म्ड है, उसे समझ में आता है व्हाट दे आर चूजिंग, व्हाट दे आर पिकिंग। मॉडर्न है वो बिल्कुल सही बात है,
थोड़ा सा एट टाइम्स नॉन एक्सेप्टेबल टू द नॉर्मल सोसाइटी है, वो भी बिल्कुल ट्रुथ है। पर हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि बच्चा कुछ ऐसी चीज करे जो वो खुद बहुत एंजॉय करता हो, वो ऐसी कोई चीज करे जिससे वो कुछ नया क्रिएट कर पाए, विच इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू डू, आई विल से दिस ईयर, एंड वो सक्सेस बहुत कम एज में और फास्ट पाले, तो सबके लिए ये एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज तो है दोस्त। आई थिंक सर मैंने कहीं सुना था, आई थिंक आप एज अ पेरेंट अगर अपने बच्चे को पंख देते हो तो फिर उसकी उड़ान से डरने की आपको जरूरत नहीं है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई मीन सी दिस इज हाउ इट इज। आई मीन एज पेरेंट्स हम लोगों को ये समझना चाहिए कि बच्चे ने एक बार कॉलेज में स्टेप इन किया है ना, आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे कि ये गलत है तो बोलेगा ठीक है हम आपको बताएंगे ही नहीं, बात खत्म हो गई। बिल्कुल, मतलब इसके बियॉन्ड कुछ है नहीं। उसके बियॉन्ड अगर आप सोच रहे हो कि आपका बच्चा आपसे बिना छुपाए कुछ नहीं कर रहा होगा, तो मुझे लगता है कि फिर हम अपने आंखों पे एक गलत पर्दा डाले हुए हैं। राइट, सो आंसरिंग लाइक ये वाला आंसर आई थिंक सारी हमारे पेरेंट्स जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको आई थिंक बहुत मेजर ये जानना ज़रूरी था कि एब्सोल्युटली क्या मॉडर्नाइजेशन की हम बात करते हैं जब हम निफ्ट की बात करते हैं, एनआईडीज़ की बात करते हैं, और आई थिंक एक जनरेशनल गैप भी है। तो आपने क्योंकि अब समझा दिया है तो इट वुड बी like little relaxing for all of the parents watching, and also for the parents beauty lies beyond the boundaries, so I think wo push karna bahut zaruri hai। Beautiful line you said, thank you। So the last question to you would be for this podcast, sir, who should not choose these careers? हमने इतनी बात कर ली कि इन लोगों के ट्रेड्स ऐसे होने चाहिए, ये होना ही चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए सर कि who should not choose these career, ये किसके लिए नहीं बनी है absolutely field? सर क्रिएटिव फील्ड्स क्या होता है अंशुल, हमारा ब्रेन ना दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है। वन इज द राइट ब्रेन, वन इज द लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन कंट्रोल्स योर लेफ्ट साइड, लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल्स योर राइट साइड। तो राइट ब्रेन की बात करते हैं। राइट ब्रेन इज द क्रिएटिव ब्रेन, जो बच्चे में क्रिएटिविटी, किसी में भी क्रिएटिविटी लाता है। एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो इन अ रिसर्च व्हिच वाज कंडक्टेड 55 या 54% ऑफ द पीपल आर राइट ब्रेन पीपल, right? So all those children and people who are right brain should choose this career, and obviously people who are left brain and proud of being a left brain people should not choose the career. So कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे ना उनको satisfaction ना वो bookworm होके ही आता है, तो उन्हें चूज नहीं करना चाहिए। वो स्टूडेंट या वो पर्सनालिटी जिसको एक ही काम रोज करने में सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसे नहीं करना चाहिए। जो इनोवेशन से घबराता हो, जो चैलेंजेस लेने से घबराता हो, उसे करियर नहीं चूज करना चाहिए। जो बहुत ही ऐसे 9 to 5 एक मोनोटोनस टाइप की लाइफ और नॉन चैलेंजिंग काइंड ऑफ अ लाइफ को देख रहा है आगे, उसे नहीं चूज करना चाहिए। बट मैंने जितने ट्रेड्स बोले, अगर इससे आप थोड़ा भी अपोजिट हो और आप आज की जनरेशन के हो, तो उन सबको ये चूज करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन कॉलेजेस लाइक IIT आर कमिंग इनटू डिजाइन, and that too not by force but by their own choice. आपको मैं बताता हूँ अंशुल, when it all started with IIT Mumbai. Today as I told you it has 6 IITs, even PG level पे 2 और IIT ऐड हो जाते हैं, है ना। कानपुर ऐड हो जाता है, बैंगलोर IISc बैंगलोर ऐड हो जाता है इसके अंदर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस डिज़ाइन कराता है, मतलब ये भी एक हो सकता है मेरे मतलब पेरेंट्स फ्रेंड्स के लिए न्यूज़ हो। IISc बैंगलोर PG कराता है डिज़ाइन में फॉर अ नॉन साइंस काइंड ऑफ अ स्टूडेंट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ही नाम है भाई। और वैसे भी हम IIT की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात, टेक्नोलॉजी के साथ डिज़ाइन चल रहा है। तो ये लोग बाय फोर्स नहीं आए, ये बाय चॉइस आए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज नीडेड। इसलिए भी नीडेड है क्योंकि जैसे कंपनीज लाइक TCS आर हायरिंग डिजाइनर्स, कंपनीज लाइक कॉग्निजेंट, कंपनीज लाइक बिग फाइनेंशियल कंपनी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, ये लोग डिजाइनर्स को हायर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इनोवेशन की अब जरूरत आने लग गई। क्लाइंट का भी डिमांड है, प्रोडक्ट का भी डिमांड है, और एंड ऑब्वियसली इंडस्ट्री का डिमांड हो गया है। तो अगर आप ऐसा देखते हैं कि आज का बच्चा जैसा सोचता है अपनी लाइफ को, उस लाइफ के लिए ये वाले करियर्स तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके सर, जैसा अभी आपने जस्ट मेंशन किया IIT के थ्रू डिज़ाइन हो सकता है, मेरे लिए बहुत ही नई बात है, तो थोड़ा सा अगर आप इस पे कुछ बता सके तो। सर छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ यार अंशुल, आई एम श्योर मुझे लगा ही था कि आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा होगा, क्योंकि IIT को जैसे ही हमने IIT नाम लिया, वैसे ही सभी के दिमाग में आता है टेक्नोलॉजी, सभी के दिमाग में आता है साइंस, सबके दिमाग में आता है इंजीनियरिंग, MTech, PhDs। तो क्या हुआ, सो देयर इज समथिंग नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप जानते होंगे, उसमें एक एक्ट ऑफ NID है। सो NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन,
एक्चुअली इंस्टीट्यूट तो है ही, पर एक एजुकेशन मिनिस्ट्री में इसका लिए एक अलग बिल भी पास हुआ है। तो उसके थ्रू इंडियन गवर्नमेंट ने IITs को ये बोला कि इफ यू विश यू कैन ऑल्सो ब्रिंग इन डिजाइन एज अ करियर ऑप्शन। सो IIT बॉम्बे स्टार्टेड अ सेंटर नोन एज IDC, इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर, जिसमें ये लोग बैचलर ऑफ डिजाइन डिग्री ऑफर करते हैं इन इंडस्ट्रियल डिजाइन। इंडस्ट्रियल डिजाइन एक ऐसा फील्ड होता है जो भी डिजाइन जब किया जाता है और वो जब प्रोडक्शन पे आता है और फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है, उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन बोलते हैं। इंडस्ट्रियल डिजाइन एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें प्रोडक्ट, इंटीरियर, इवन कम्युनिकेशन डिजाइन के कुछ पार्ट्स लाइक एनिमेशन, VFX, UI UX, ये सब इसी के अंडर आते हैं। तो IIT इनमें से सभी फील्ड्स में आपको बैचलर ऑफ डिजाइन कराता है। IIT कोई स्पेसिफिकेशन नहीं देता, स्पेशलाइजेशन नहीं देता। वो ये नहीं बोलता मैं आपको बैचलर ऑफ डिजाइन इन इंटीरियर करा रहा हूँ, वो बोलता है मैं बैचलर ऑफ डिजाइन करा रहा हूँ। डिपार्टमेंट का नाम इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर है। तो यहाँ IIT बॉम्बे स्टार्टेड इट। IIT बॉम्बे ने इसको स्टार्ट किया और नॉन साइंस स्टूडेंट्स को एंटरटेन किया, और उसके साथ उन्होंने बच्चों को डिजाइनर बनाना स्टार्ट किया। दो दे स्टार्टेड विथ PG डिग्री, बट नाउ UG इज देयर लाइक सुपर सेलिब्रेटेड काइंड ऑफ अ कोर्स। करीब 12,000 बच्चा UC लिखता है और उसके थ्रू IIT जाता है। और IIT बॉम्बे से स्टार्ट होके आज इंडिया में ऐसे 6 IITs हो गए, एंड लास्ट बीइंग IIT रुड़की विच एडेड अप दिस ईयर ओनली। तो IIT, जैसे मैंने आपको बताया था, IIT बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, रुड़की एंड जबलपुर, ये 6 IITs आपको डिज़ाइन में करा रहे हैं। सभी लोग इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में ही कराते हैं, ये लोग फैशन में नहीं है। बट बाकी जितने भी प्रकार के डिज़ाइन होते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल डिज़ाइन वाला फैक्टर आता है, ये लोग कराते हैं। और कुछ जगहों पे एलिजिबिलिटीज़ होती हैं कि साइंस होना चाहिए, बट आप ये मान सकते हैं कि इस समय पर कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो वो IIT के लिए UCED एग्जामिनेशन लिख सकता है। और आई थिंक ये बहुत मतलब रेजोनेट कर रहा है टिपिकल इंडियन पेरेंट से। I mean, I'm sure I have a lot of parents who are watching me, and you always dreamt like, I mean, you yourself or your wife, your spouse, or people in your house, your child should also study in IIT. And probably ये जो feeling है, इसे शायद इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बहुत ब्यूटीफुली इसके थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करी है कि अब आप IIT से भी डिज़ाइन पढ़ सकते हो नॉन साइंस बैकग्राउंड के होके। तो आई एम श्योर जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, आपको इस एग्ज़ाम के बारे में और पता करना चाहिए, एंड देखना चाहिए इफ योर चाइल्ड इज क्रिएटिव इन नेचर, they should pursue design from IIT. Absolutely. So for all the parents watching, I think you guys should take a note. And so thank you so much, sir, for your valuable time with us. I am pretty sure that आज जितनी भी यहाँ बातें हुई हैं, बहुत सारे students, parents को address करते हुए, and I am hoping that उनकी बहुत सारी queries और जितने भी rumors उनके हैं, वो उनकी nerves थोड़ी सी settle हुई होगी. And once again, a very, very thank you for coming here and giving us your time. Thank you, Anshul. It was beautiful talking to you. I mean, I'm sure मैंने बहुत समय बाद पेरेंट्स के लिए इतना डिज़ाइन के बारे में बोला है. It is always स्टूडेंट्स जिनके लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं. इस बार मैंने पेरेंट्स के पर्सपेक्टिव से इसको जरा देखा. Thank you so much for calling me here. Thank you so much. Thank you. If you guys like the video, please make sure that you mention your favorite part of the video in the comment section and let me know what did you like about this podcast.